Hello students, welcome to the economics class, chapter number 2, people as resource, and I am here Poonam Prasad in front of you, and today we are going to start with a last topic of your entire chapter, people as resource, and this is about you can say the condition of unemployment in India. Students, if we are talking about the condition of unemployment in India, we can say statistically the unemployment rate in India is low because large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. हमारे कंट्री के कंडीशन में जो प्रोडक्टिविटी है या लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज द एम्प्लॉयड. इट मीन्स पीपल विद अ लो इनकम, उनके पास कम आय है, उनकी प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लेस, बट दे आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड. स्टूडेंट्स, if we are saying that they appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not very adequate to them. It is true. Whatsoever they are generating, there is not enough for them. जो भी उनके पास थोड़ा बहुत भी होता है वो उनके लिए पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है या उनको वो पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता है ना. So children, the work that they are pursuing seems forced upon them, so they may therefore want another work of their choice. Children, this is, you can say, the fact that poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. Their earning keeps them on to sustain their life, children. So we can say that अगर एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति मेयरली उसे वो ये सोचे कि मुझे इतना वेजेस या मेरे पोटेंशियल के हिसाब से मुझे वेजेस नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, मैं काम नहीं करूँगा, तो ये शायद भारत के लिए, भारत के वर्किंग फोर्स के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं है. यानी ऐसे कंडीशन में जो एम्प्लॉय है, खासकर पुअर पीपल, दे आर नॉट एबल टू सिट आइडली, और उन्हें जो भी काम मिलता है, जिस भी वेजेस में मिलता है, जिस भी सैलरी में मिलता है, द people are ready to do their work. They wanted to engage themselves actually. Fine children. अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की, तो हम ये कहेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स of employment in our country. Self employment. But problem is there, children. How? The whole family, they contribute in the field, even though not everybody is really needed. So there is a disguised unemployment. हम लोगों ने पहली क्लास में भी disguised unemployment के बारे में ये बात कही थी कि एग्रीकल्चर फील्ड में हमें 5 व्यक्तियों की ही ज़रूरत है, लेकिन हमें 8 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं. But that 3 are considered as the surplus laborers. What's about that surplus labor? क्या होगा? So children, disguised unemployment is there in agriculture sector, but the entire family, they shares what has been produced by the potential earners. This concept of sharing of work in the field and produce the raise reduces the hardship of unemployment in the rural India, but this does not reduce the poverty of the family. So children, अगर हम कहें कि पूरे लोग इंगेज है, फैमिली मेम्बर्स पूरे इंगेज्ड है एग्रीकल्चर फील्ड में, और उससे जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन बेटा इससे पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस नहीं होती है.
और पॉवर्टी अगर रिड्यूस नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे जो पोटेंशियल व्यक्ति है वही काम कर रहा है, बाकी रेस्ट क्या है, दे आर कंसिडर्ड एज अ सरप्लस लेबर, लेकिन शेयरिंग उनकी क्या है, वो इक्वली है। तो ऐसे कंडीशन में वो सरप्लस लेबर्स क्या करेंगे? So due to this disguised unemployment, the surplus laborers, they can move to towns and cities to engage themselves in secondary and tertiary sectors children. वो लोग क्या करते हैं, बाहर जाके cities areas में, towns areas में जाके they are able to engage themselves in other activities. Fine. जैसे कि चाहे ड्राइविंग में, चाहे प्लम्बर का काम करना, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम करना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस को ओपन करते हैं, एक्सेट्रा. नाउ चिल्ड्रन, इफ़ वी आर थिंक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इफ़ वी आर डिस्कसिंग about the employment scenario in the 3 sectors in Indian, you can say Indian economic sector. So primary sector, in which the agriculture is considered as the subsector, it is the most labor absorbing sector है बेटा. वो शुरुआत से रहा है, तभी हमारा कंट्री एग्रेनियन इकोनॉमी कहा जाता है. हमारा कंट्री एग्रेनियन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री कहते हैं, इसकी इकोनॉमी को एग्रेनियन इकोनॉमी कहते हैं. बट इन रीसेंट ईयर्स चिल्ड्रन, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन in the dependence of population on agriculture because of disguised unemployment. Due to disguised unemployment, the people are now less dependent on this sector children. जैसे कि ए फैमिली है, उसमें फार्मर के 3 बच्चे हैं, ठीक है. फार्मर ने कहा अपने बच्चों से कि मेरे साथ कोई एक बेटा या एक बच्चा मेरे साथ फील्ड में काम करेगा. तो यानी कि 5 में से 2 इंगेज हुए फील्ड में, और उन्होंने अदर लैंडलेस लेबरर्स को भी अपने फील्ड में रखा, और उन्होंने अपने 2 और बच्चों को कहा कि वो जाके शहर में कमाएं. वो 2 बच्चे शहर में जाते हैं, एक ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीख के कैब चलाने लगता है, यानी टैक्सी चलाने लगता है, और दूसरा इलेक्ट्रिशियन ITI करके या एजुकेशन लेता है, ITI करके वो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखता है ना, और उनको एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जॉब भी मिल जाती है. तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं क्या हो गए, प्रोडक्टिव हो गए. जो भी इनकम वो जनरेट करते हैं उसमें से कुछ शेयरिंग कर अपने पिताजी को भेज देते हैं. तो इस तरीके से वो सिटीज़ में रहते हुए भी अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली. और यहाँ पे जो लैंड रिक्वायर्ड फॉर इट्स लेबरिंग वो डन है फ्रॉम द साइड ऑफ द फार्मर एंड हिज सन, वन ऑफ द सन. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे जो सरप्लस लेबर है, वो सरप्लस लेबर अल्टीमेटली क्या है, प्रोडक्टिव बन रहे हैं और वो एसेट का काम कर रहे हैं बेटा. Now, if we are talking about the recent scenario of employment generating economic sectors in India, जैसे मैंने कहा कि पुराने समय से ही एग्रीकल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है in terms of employment absorbing. But in the recent years, the tertiary and secondary sectors are engaging more and more employment children. खासकर tertiary sector, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में काफ़ी डायनामिक जॉब्स ओपन हुई हैं फॉर द यूथ, फॉर द वुमेन सेक्शन, एंड बोथ फॉर स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर्स बेटा. बाय गिविंग देम ट्रेनिंग, एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंश्योरेंस सेक्टर, टूरिज्म, ट्रैवल, ट्रेड. And also the people are started their own enterprises. It means also the people are engaging themselves into the secondary sector
by opening of by engaging themselves in small enterprises, small scale industries, they are opening their own enterprises, अपनी खुद की छोटी बिजनेसेस, जैसे कि तुम कह सकते हो शू मेकिंग इंडस्ट्री है ना, विमेन सेक्शन के लिए पार्लर्स, टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, यू कैन से इन टर्म्स ऑफ जैसे पापड़ बनाना, पिकल्स बनाना, बास्केट बनाना, क्रोशिया के सामान, क्रोशिया से मेज पोश बनाना या सोफ़ा सेट बनाना या डाइनिंग टेबल का सेट बनाना। इस तरह से कई ऐसे ओपन्स हो गए हैं जॉब्स, जिसके वजह से जो सरप्लस लेबर है, जो इंगेज था बट कंसिडर्ड एज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, तो वो अपने आप को एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली काम करता है और जनरेट करता है इनकम फॉर देयर फैमिली। स्टूडेंट, द लास्ट टॉपिक मैंने पहले भी आपको चैप्टर एट अ ग्लांस में बताया था, अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ विलेज इज़ देयर। मैं आपको इस स्टोरी की क्लिपिंग भेजूंगी और इस क्लिपिंग को आपको पढ़कर एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है कि हाउ कैन a people be termed as an asset in the village areas। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हम शहर में जाकर कमाएंगे तभी हम अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुदृढ़ यानी कि अच्छा बना सकते हैं। लेकिन बेटा, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है विलेज में, अगर वहाँ से हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स हम कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे। पर कैसे? तो उस स्टोरी के बेस पे मैंने एक कंक्लूडिंग पॉइंट बनाया है, जिसमें हम कह सकते हैं जैसे कि बाय अडॉप्टिंग ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि पिताजी ने जो एक ट्रेडिशनल काम शुरू किया है हमें भी वही करना चाहिए। वी कैन मूव ऑन। जैसे कि एक किसान अपने बच्चे को फार्मिंग में ना इंगेज करके उसको एजुकेट करके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजकर उसको एग्रीकल्चर इंजीनियर बनाए, बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वो साइंटिस्ट बने, रिसर्चर बने। जब ये बच्चे अपने गांव आते हैं तो वो अपने फील्ड को इम्प्रूव करते हैं बेटा, है ना, एंड दे आर एंगेजिंग मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर फील्ड। उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराया यानी कंस्ट्रक्शन हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज प्रोवाइड कराई, है ना, उन्होंने स्कूल्स यानी ये एक चेन है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर साइकिल। गांव के और लोगों ने भी और फार्मर्स ने भी चेक किया तो उनको लगा कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उन्होंने स्कूल्स की डिमांड्स रखी और उन्होंने ये अपने सरपंच से कहा कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खोलते हैं और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी भी खोलेंगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इम्प्रूविंग इन एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ चिल्ड्रन, इन सब में मैन फोर्स इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप ये जाके लोगों को किस तरीके से अपने ही द्वारा जनरेट किए हुए इनकम को किस तरीके से डिपॉजिट करके बचाकर हम कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, जैसे मोटरसाइकिल्स रिपेयर शॉप, बाइसिकल रिपेयर शॉप, ठीक, बस रिपेयर शॉप, छोटे छोटे ढाबे, है ना, विमेन सेक्शन जो आइडली घर में बैठती हैं अपने काम काज करने के बाद, उनके लिए कॉटेज इंडस्ट्री ओपन किया गया जिसमें वो अपने हाथों का हुनर दिखाती हैं। फिर बहुत ऐसे सर्विस सेक्टर्स को ओपन कर सकते हैं जैसे टेलरिंग, स्कूल्स ओपन हुए तो टीचिंग, पैसा या इनकम बढ़ने लगा, हॉस्पिटल्स ओपन हुए,
जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ, तो ड्राइवर्स, इस तरीके से हम कई ऐसे जॉब्स ओपन कर सकते हैं विलेज में, जहाँ पे जो पीपल है they will become an as a asset rather than the liability children. So this is all about your class children, all about your chapter people as resource. कल मैं आपको recapitulation of your chapter along with some questions provide करूँगी. Till then, thank you very much children.